माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम टू माय चैनल। इस एपिसोड में मैं आदित्य L1 के बारे में लाइव रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसी के साथ ही चलो आदित्य चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, सूर्य के पास चलो। But at the same time, it could also, in the times to come, be one big reason for destruction of mankind. So this is something that if we need to study about, the scientific community needs to know greater detail about the sun, the harbinger of life on earth. And as you can see again, live visuals on your screen, the scientists are all set for the launch. It's 11:45 by the clock, 11:50 at the time, just about 5 minutes for this crucial launch to take place from Sriharikota. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान से जुड़े हुए वैज्ञानिक तो वहाँ पर मौजूद हैं, आम लोग भी हैं और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और छात्राएं वहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा इसरो की तरफ से उन छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है इस अभियान को देखने के लिए। And this excitement, Mr. Pant, is palpable. We've been seeing, especially since the launch of Chandrayaan-2, the kind of excitement and the hope that ISRO will see success with the kind of hard work that the scientists have put. How do you see the successes of these missions open up the space sector for the youth, for the private sector? Because this is huge for India, the kind of effort that ISRO is making. And it's also important at the same time that with the kind of ambitious missions that we are now planning, more and more involvement of the private sector and also more and more participation from the youth is important. Yeah, I think now ISRO is launching like different missions, starting from ASTROSAT, then Chandrayaan 1, 2, 3, now Aditya, and then there will be the Gaganyaan mission. So that opens up a lot of possibilities for हमारा मोटो भी है इस बार का चांद से आगे सूर्य के पास and tell them, okay, this is what we have achieved and this is what is possible and what can be done in future. And this has been started very recently after, let's say, starting from ASTROSAT, even before that. And now ISRO के साइंटिस्ट I think the young generation is now convinced and they are motivated पूरा डिटेल बता रहे हैं these missions that in future they can also get involved in such type of missions and then do certain important contribution to the society. This is also important for the private sector because until now I believe there was not much private participation in these missions, but now once our space agency is opening up to private Sriharikota से, so I think they will also have a huge opportunity because now we are planning for more and more missions, so they will have more opportunity to create let's say electronics or other components for these missions. So it will be an interesting opportunity for them. वो सूर्य जो हम सब जीवों का भविष्य निर्धारित करता है। Right, just 2 minutes for the launch to go, so we'll cut across live to the telecast that is coming in from the ISRO headquarters. T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर उल्टी गिनती शुरू। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह विश्वास है, पूरा विश्वास में तीसरा मिशन है। अपने कर्तव्य पर, अपने देश पर, अपने सामर्थ्य पर। T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are out. -50 seconds. All seconds are stopped. अपार भीड़। तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds प्रमोशन किया जाएगा। open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS out.
minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत माता की जय, वंदे मातरम से गूंज उठा पूरी गैलरी। Lift off normal. You are tracking? PT tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Airlift strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lit strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेट स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है उड़ान है PSLV की बहुत ही काफी सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयरलेट स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Airlift strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। प्लस 2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। लक्ष्य के अनुसार Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. PSLV द्वारा Path closely matching the आदित्य L1 prediction. मिशन प्लस 3 सबसे मिनट्स। टॉप में है, आपको दिखेगा कुछ ही क्षणों के बाद। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। जिस कवच की जरूरत नहीं उस कवच को धीरे धीरे त्याग करता हुआ The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing Wow. separated. क्या बात रही। The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 पृथ्वी की ही kilometers per कक्षा में second. ऐसे जगह पर पहुंच गया जहां उस कवच की जरूरत नहीं है। इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. बार बार आप लोग सुन रहे ये होंगे चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता है L1 और यान लैग्रेंज सामान्य एक जगह का नाम है। अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ वो रहा जगह है। है, आपको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कैंडल जलाइए अंधेरे Second में stage separated. और दूर से Stage उसको ignited. देखिए। जो कैंडल की बाती द्वितीय है चरण उसके को भी बाहर लौ जलती यान से है पृथक कर और दिया लौ है। से दूर उसके एक प्रज्वलन गोलाकार आकृति बनती है। और तृतीय वही चरण है। जो कि ठोस नोदक पर आधारित ऐसे ऐसे है, इसलिए 5 इसका प्रज्वलन शुरू हो लैग्रेंज चुका है। है। 1
2, 3, 4, 5 आपको दिखाएंगे We चित्र are में। close to 5 minutes past the launch time. आभा मंडल Presently, जिसको बोलते हैं, the सूर्य third का stage आभा of मंडल, PSLV is चंद्र के operational, developing nominal thrust. कभी कभी चारों तरफ एक रिंग सी बनती है, Plus 5 minutes. वही है तृतीय चरण में असली 7.6 चित्र, टन के जिसको एक क्रूज नोजल का वैज्ञानिक प्रयोग होता है लैग्रेंज ने और उसका इसका नाम अपने प्रज्वलन नाम काल पर दिया। 117.7 समझने के लिए मैं सेकंड का एक होगा। मोटी भाषा में इस आपको दौरान बताया। यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। एक स्टेज का वर्तमान में आकलन क्लांक की करते हुए ऊंचाई सारे वैज्ञानिक 134 अपने अपने किलोमीटर कर्मों पर तथा सापेक्ष गति अपने 5.96 किलोमीटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी गई है उसका सही तरह से समन्वय हो रहा है, निर्धारित हो रहा है और उसका जैसा कि हम रिपोर्ट जानते देते हैं, हुए PSLV और एक ग्राफ के थ्रू विश्वसनीय सबका रॉकेट सम्मिलित है रिपोर्ट इसरो का। आपके सामने आ रही ऐसा ही है। प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 ये का ऐसी स्पीड और ऐसी जगह पर पहुंच गया कि कुछ ही देर में इसका For the प्रज्वलन present mission, बंद किया दिया after जाएगा। PS3 completes अपने ही its फोर्स से configuration, a coast phase स्पेस of में जाने के 200 बाद seconds will follow, प्रक्षेपण के in बाद which वो the घूमता rocket रहेगा, will continue to be जिसको steered आप when अभी there is देख no पाएंगे। development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में अब ईंधन की Your जरूरत stage कम होती action हुई completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और ये और देखिए होस्टिंग बंद फेज हो इसके गया। बाद जारी रहेगा। ये हमेशा बंद नहीं होगा, Vehicle in combined hosting आगे for भी approximately प्रक्षेपण के 200 टाइम seconds. इसको प्रज्वलित किया जाएगा जब जब जरूरत पड़ेगी, जितने ईंधन की नाप तौल से। और यही कारण है कि विश्व में हमारा जो भी मिशन है सबसे सस्ता, सबसे To आसान, this mission बेशक कुछ PS4 देर हो जाए, will start twice. 125 दिन लगेंगे Previous needed times and duration. L1 तक पहुंचने के लिए, उसकी चिंता नहीं है। The multiple start Safe, capability सुरक्षित of PS4 और देश हित में will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this बहुत mission. सारी नीतियां हैं जहां पर The commencement and duration of PS4 धन की burns जरूरत enable होती है। achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at अब ये equatorial अपने plane. ही थ्रस्ट से आगे बढ़ता EOP हुआ exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. अब इन टेक्निकल डाटाओं को आप ध्यान से सुने। सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सारे डाटा हमारे परिवारजन बच्चों के मन में उत्साह पैदा करेंगे, जानने की चेष्टा होगी और तभी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सब दिखाने की कोशिश की। Vehicle performance normal. आदित्ययान तो उड़ गया, Plus अब ये 5 16 minutes. दिन पृथ्वी के Speaking a few कक्षा में words ही about the Aditya L1, बार बार प्रक्षेपण describing करके the अपनी sun, दूरी को कम Indian करता हुआ Vedas चांद से येष तक भगवान पहुंचने के लिए मलिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य दीपको ब्रह्मांड भाण्डस्य असायैव चरकर्ति भरवति चरहति च जगत्. This mighty jewel, the light of eastern sky, generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions.
The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. ये आदित्य L1 Now we have a successful करीब 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन करने की क्षमता रखते हुए It is approximately और जिस 900 पोजीशन में जा रहा है, हालांकि नासा का plus 10 minutes. आदित्ययान मिशन पहले भी पहुंचा है, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंचा जहां ये जा रहा है। पूर्वक पृथक कर दिया गया है। उस जगह का नाम L1 है। होस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी लैग्रेंज प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ नासा L2 तक पहुंचा है। We are 627 जो seconds सूर्य from से the काफी launch. दूरी पर है। For another 600 more seconds also, we will be getting tracking आशा है जो data हमारा from the लक्ष्य IX होगा। ground station. और हमें वो प्राप्त होगा। यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस ग्राफ के जरिए हमको पता चलेगा है। हमारा आदित्य L1 पॉइंट पर नासा ने L1 पहले ही सोलर कितनी दूरी पर है, ऑब्जर्वेटरी सोहो किस अवस्था में है, और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है, जो लगातार पृथ्वी से कम्युनिकेशन में है। में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। ये देख पा रहे हैं आप इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट L1, L2, L3, L4 एंड L5 का केवल 1% है। हमारी उद्घोषित Vantage जगह है जहां पर point sun. आदित्यवन जाके बैठ जाएगा। वहां पर Direct visibility. कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, उसको हिलने की जरूरत नहीं, और 24 आवर्स सूर्य की निगरानी में रहेगा और पृथ्वी को हमारे इसरो को कम्युनिकेशन देते रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन वांछनीय है। Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. फ्लाइट पैरामीटर्स आप देख रहे हैं। PSLV C57 से छोड़ा गया आदित्य L1 मिशन। Approximately 150 million. ट्रांजेक्टरी बोलते हैं At the central L1। region of the sun known as और ये जो चित्र देख रहे हैं, इस तरह से पृथ्वी के पास इतनी degree Celsius. मैन्यूवर में घूमता हुआ और लंबी दूरी तय करता हुआ लास्ट में एक दूरी तय करेगा सूर्य की तरफ, और वहां से एक सूर्य नमस्कार की तरह से गोल आपको चित्र दिख रहा होगा पीछे मुड़ता हुआ, और L1 में स्थापित हो जाएगा ये हमारा आदित्य L1 मिशन। L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. क्रूज फेस Orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the Lagrange point. हेलो ऑर्बिट इंसर्शन L1 के पास एक गोल सी आकृति सीधे जाकर रिटर्न होते हुए डायरेक्शन बदली करते हुए आप देखे होंगे स्पष्ट रूप से। इसको दिखाना मैं बहुत ही जरूरी समझा आपको। Several probes have been placed in space to observe the sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya. यह है ग्राफ टाइम वर्सेस एल्टीट्यूड्स। view of the sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA, NASA's ये अपने पास एक दो नहीं बल्कि 7 पेलोड्स ले जा रहा है, और सब अपने अपने आप में बहुत ही सक्षम है। सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां
अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में फर्स्ट तो पृथ्वी की कक्षा में ही की खपत पर या छोड़ दिया जाएगा, स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोग अध्ययन के लिए बनाए जो 15 लाख किलोमीटर की L1 उपग्रह को दूरी पर स्थित लैग्रेंज पॉइंट हमारा आदित्य जा रहा है। अंतरिक्ष उसके साथ रिले एक्टिविटी करेगा। 10 दिन का समय लगेगा, क्योंकि वहां से पृथ्वी पर सूचना आने में करीब 8 मिनट का समय संभावित है के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह और बीच में रिले होने से ये पास जाएगा और यहाँ ऐसा स्पष्ट यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी और पिक्चर भी मिलना कुछ आसान हो जाएगा। और अध्ययन किया जा सकेगा। ये देखिए कितना प्यारा सा चित्र है, कप के माफिक। किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर ये अपना स्थिति चेंज करता हुआ कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान PS4 स्पेस में अपना डायरेक्शन चेंज करता हुआ अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जहां आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार है और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। मुझे पूर्ण विश्वास है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग आप लोगों टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही उत्साहवर्धक यह ज्ञानवर्धक प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है और भविष्य के लिए अपने बच्चों अपने समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटल एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। देखिए चित्र में श्रीहरिकोटा दिखाते हुए नीचे छोटा सा जो चित्र है लंका का है। L1 के नितभार इससे स्पष्ट होता है श्रीहरिकोटा से ये दूरी तय हो चुकी है। विजुअल इमेजिंग ऑफ PLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में।
मुझे पूरा विश्वास है After India's आप made history लोगों को with the ये वीडियो Chandrayaan पसंद 3 आएगा। launch, it has now set its eyes on the sun. धन्यवाद, जय हिंद।